Good evening. Hello, students. Welcome, all of you. Welcome to this YouTube class and YouTube session. Yeah, just joining in the live chat. Yeah, just a second. Joining in the live chat. Yeah. Two of my sessions are active. Yeah, students, I'm fine live. Yeah. Nitin Patel, hello, hi. Yeah, I'm in the live chat now. So, welcome all of you students. So, welcome to this session on MOSFET. A topic which most of you are very confused with. Okay, sir, what sort of questions will be there? How do we handle a MOSFET? At least in today's class, I'll teach you how to handle the DC analysis of a MOSFET. I'll teach you what sort of questions can be expected in MOSFET in DC analysis. Sagnik, hi, how are you? So before we start the discussion and get more into the subject about MOSFET, biasing circuits, operating point calculations, let's discuss about a few aspects of Unacademy. The first good news is GATE exam hall ticket has been already issued and you can download it. So a lot of discussions going on about its fate and its postponing and all. What are the fate of the exam is? You got to keep studying. Even if it is postponed or even if it is on time, you have to study as a student. So of course people try in different ways. So you have a mock test happening here every Sunday, which will tell you how and what sort of quality GATE exam is going to maintain, so that you know where GATE exam, where do you stand in the GATE exam, what standards it maintains. So do write these exams every Sunday along with the scholarship exams for GATE, which is called as compact exam. We also got very good offers on Unacademy subscription. If you go for a 2-year subscription, you get additionally 4 months free. And if you go for 1 year, you get 2 months free. So all these offers are surely going to help you a lot in taking the subscription. And this is the compact exam. And this Sunday, especially it's a mega compact. So don't miss this exam, students, this Sunday, because it's a mega compact exam. And there will be a lot more things on a gigantic scale than the regular compact. So it's a monthly once event, not the regular weekly event. So do go for this compact. And Sunday 11 a.m. the same time, it's fixed always. And all these are assured for you. Apart from the scholarship benefits, 100 students getting 100% scholarship. Apart from it, lot more benefits. Do go for this exam Sunday. And these are the upcoming batches, students, new batches, especially for electrical and ECE. This is the team of ECE. And we are starting with maths, being a very basic subject. तो मैथ्स से शुरू हो रही है पल्लव गौर सर का 6 बजे को. नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स is starting. That's also going to start next week. And this is the team you can find. So tomorrow, I think this date, tomorrow it's the date. Yeah, 19 Jan. It's tomorrow itself. You're going to start with maths. So this is the team of ECE. And electrical also the same team, the core team we got. So myself and of course the core electrical team with K.N. Rao sir and Vishnu sir, Siddharth sir, Vishal Soni sir, Bhima Shankar sir, we all form the great team of electrical and electronics. So that's about ourselves, that's about our Unacademy. Let's start MOSFET then. Let's start discussing about MOSFETs, if you're all ready. Students, when you talk about MOSFET or JFET or any amplifier, you should be talking about its controllability. मतलब किसी भी एम्पलीफायर जैसे डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, सबसे अहम पॉइंट होती है इट्स कंट्रोलेबिलिटी. मतलब ये यूज इसी के लिए होती है कि इट इज टू कंट्रोल समथिंग. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन एम्पलीफायर. सो द कंट्रोलेबिलिटी इक्वेशन इन ए मॉसफेट और इन ए जेफेट इज दैट यू हैव ए गेट which is called as VGS, which actually controls a drain to source flow, which is called as a channel, and which is controlled is IDS, drain current. So the central equation in understanding a MOSFET को समझने का यही तरीका है. और the requirements of understanding a MOSFET is you should know that a gate controls a drain to source flow. What does it mean by controlling? The meaning of controlling is
द मीनिंग ऑफ एम्प्लीफिकेशन। कंट्रोलेबिलिटी पढ़ने का मतलब है कि आप लोग एम्प्लीफिकेशन पढ़ रहे हो कि ये जो गेट होती है ना, इसमें एक इनपुट में एक वीक सिग्नल देते हैं, यू गिव ए वीक सिग्नल and that weak signal will be as it is produced here because this weak signal controls the flow here. So यहाँ पे जो high power flow हो रही है, high power flow being controlled by the gate, what you get is this high power very similar to this weak signal, एकदम इसी के similar होगा. So what you get here is in the output a strong signal. So amplification का ये मतलब नहीं कि कोई कमजोर सी डिवाइस, कमजोर सी सिग्नल किसी डिवाइस के अंदर जा रही है और मजबूत स्ट्रांग बन के आ रही है. That's not amplification means. Amplification doesn't blindly mean that something is going inside, eating something and coming out strong. Amplification means controllability. Amplification means a weak gate voltage can control a strong flow. जब इस हाई पावर फ्लो को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, ये जो सिग्नल हैं ठीक इसी के जैसा दिखती है, लेकिन ये हाई पावर हैं, ये लो पावर हैं. So it is artificially producing one more signal. It is linearly producing one more signal exactly in similar terms to the weak signal. That equation, if you look at it, उस इक्वेशन को अगर देखेंगे, that is what we call it as IDS is equal to ID double S into 1 minus VGS by VP whole square. If it is a JFET or if it is a D MOSFET, ये होती है कंट्रोलेबिलिटी इक्वेशन. आई होप यू आर फॉलोइंग दिस स्टूडेंट्स. इतनी मासूम होती है अगर वो JFET या MOSFET हो तो. बट द प्रॉब्लम इज नो एग्जाम विल डायरेक्टली आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस. इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स से सर्क्यूट देते हैं. उन सर्क्यूट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है. सो एम्प्लीफिकेशन एंड फिजिकली कॉन्सेप्चुअली लर्निंग एम्प्लीफिकेशन इज एज सिंपल एज दिस. एम्प्लीफिकेशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आती है जो वीक सिग्नल के सिमिलर हैं और उसे समझने का इक्वेशन इतनी सिंपल है. बट ये एग्जाम्स की जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट एग्जाम्स नीड यू बाय हार्टिंग दिस फॉर्मूलाज. दे नीड यू टू अंडरस्टैंड सर्क्यूट्स. दैट सर्क्यूट्स इज व्हाट वी लर्न टुडे. कम से कम आज हम लोग 3 सर्क्यूट्स पढ़ेंगे. कम से कम आज हम लोग डीसी एनालिसिस करेंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड बायस, सेल्फ बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस एंड सो ऑन. राइट? या एग्जैक्टली. पावर इंक्रीमेंट, नितिन पटेल, इट्स नो डाउट पावर इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं, वो भी सही है. बट सी, जो भी मैं यहां से बात कर रहा हूं ना, ये कमजोर सी सिग्नल है. राइट? दिस वीक सिग्नल इज कंट्रोलिंग द स्ट्रॉन्ग फ्लो इन द स्पीकर्स. स्पीकर में जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाती है ना, वो इसी के अकॉर्डिंगली जाती है. दैट कंट्रोलेबिलिटी इज एम्प्लीफिकेशन. सो नो डाउट योर लॉजिक इज ऑल्सो राइट. तो ये JFET या MOSFET वाली इक्वेशन है, कंट्रोलेबिलिटी इक्वेशन है. इफ इट इज E MOSFET, इक्वेशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. इफ इट इज E MOSFET, सो एनहेंसमेंट MOSFET में ये इक्वेशन नहीं चलेगा. पिंच ऑफ वाली विथ पिंच ऑफ विथ सैचुरेशन करंट्स, नो, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. हाउ डज द इक्वेशन लुक लाइक? इट इज ID is equal to mu into COX into W by 2L into VGS minus VT whole square. Sometimes they also call it as K and write it as K into VGS minus VT whole square. So ये दो equations हर किसी को पता है. Every student knows these equations. But no gate question will directly come on these equations. It's not your BTech exam कि बेटा आपको VGS दिया, VT दिया और K दिया और ये निकालो. कोई ना कोई सर्क्यूट देते हैं. They'll actually complicate the circuit with, they'll actually complicate this situation by giving a circuit. कि the circuit will be, how do you give gate voltage? Gate voltage कैसा देना चाहिए और कैसा देते हैं, उससे ड्रेन करंट कैसा निकालना है.
So otherwise, the basic of understanding JFET, MOSFET and everything is this. MOSFET पढ़ना है, JFET पढ़ना है, तो ये इक्वेशंस आना चाहिए कि भाई इस गेट वोल्टेज की वजह से ये ड्रेन करंट कंट्रोल होती है, इस गेट वोल्टेज की वजह से ये ड्रेन करंट कंट्रोल होती है. दिस इज लेवल 1. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होता है, यहां तक हर स्टूडेंट एक्सपर्ट हैं. इस डेटा को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस डेटा, दे गिव ए वेरी पेक्यूलर सर्क्यूट. एक ऐसे ही सर्क्यूट होती है, द सिंपल सर्क्यूट, द फिक्स्ड बायस सर्क्यूट. सो इस डेटा को इंप्लीमेंट करने के लिए, टू इंप्लीमेंट दिस डेटा और टू नो व्हाट इज वीजीएस या नो व्हाट इज आईडी कैलकुलेशन, इनमें से कोई भी कुछ भी यूज करना है तो एक सर्क्यूट देते हैं. सिंपल सर्क्यूट ऐसी होती है, द मोस्ट सिंपलेस्ट सर्क्यूट, टिपिकली सिंपल सर्क्यूट ऐसी होती है कि एक वीडीडी हो गया, एक JFET या MOSFET हो गया, एंड देन दिस इज ग्राउंडेड, ये RD हो गया, ताकि यहां से देयर इज ए ID फ्लो, एंड यहां पे देयर इज एन RG, and there is VGG. This is one of the simplest biasing circuit. शायद गेट लेवल में इतनी सिंपल क्वेश्चंस आ भी नहीं सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट बायसिंग सर्क्यूट दैट यू कैन एक्सपेक्ट. यहां पे JFET हो सकती है, MOSFET हो सकती है, DMOS हो सकती है, EMOS हो सकती है, जो भी हैं. In such a simple scenario, ऐसे simple situation में, what is your Q point? आपका operating point क्या है, मतलब आपकी DC values क्या हैं? What are your DC values? What is your operating point? It's very simple. कि आपकी जो VGS हैं, operating point का सबसे अहम चीज, operating point का सबसे central point, most important controllability DC value, जो VGS होती है, यहां पे क्या है, गेट सोर्स वोल्टेज. सोर्स तो जीरो में है, सोर्स इज एट जीरो. गेट वोल्टेज कितनी है, VGG माइनस IG इंटू RG, VGG माइनस IG इंटू RG, बट IG वोंट बी देयर, क्योंकि गेट में हमेशा इन्फिनिट इनपुट इंपोडेंस होती है. द गेट इज ऑलवेज एट इन्फिनिट इनपुट इंपोडेंस, वो EMOS हो, DMOS हो, जो भी हैं. सो बाय लॉजिक it is just nothing but VGG itself. So your VGS is as simple as minus VGG, to be more accurate. So that from this VGS you can get your IDS, provided you are either given with VG, you are either given with pinch off voltage, or you are given with threshold voltage. सो ऐसे सर्क्यूट से भी क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, नॉट ए बिग डील एट ऑल. ये सबसे मासूम सर्क्यूट हैं. तो इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए नो एग्जामिनर विल गिव यू डायरेक्टली VGS. दे वोंट गिव यू कि VGS इतना है, VT इतना है, IDS निकालो. दे मोस्ट ऑफन व्हाट दे डू इज दे गिव सच ए सर्क्यूट जिसमें से ये VGS होती है, उस VGS से IDS निकालना है. उसके बाद समटाइम्स they'll ask you VDS निकालो. सो द ऑपरेटिंग पॉइंट का सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज VDS, which you can get it as VDD minus IDS into RD. अगर आपको VDS निकालना है, इधर का वोल्टेज, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज इज दिस वोल्टेज. सो इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं इफ द सर्क्यूट इज एज सिंपल एज दिस. Yeah, Anil Kumar, sure Anil. Any doubts anybody? Feel free to ask me in the live chat. Feel free. अनिल कुमार का डाउट यह है कि सर VGS VGG बराबर कैसे हैं, VGS VGG बराबर क्यों हैं? क्योंकि बेटा यहां पे VGS जो है गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज है. अनिल, गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज है, और सोर्स कितनी वोल्टेज पे है, 0 पे है. सोर्स इज एट 0 वोल्ट्स. तो VGS जो होती है वो गेट वोल्टेज बराबर ही है.
सो सोर्स बीइंग एट 0 वोल्ट्स, VGS इज VGG इटसेल्फ, है ना। लेकिन ये जो VGG है यहां से कोई करंट तो नहीं है, क्योंकि IG तो 0 है, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। सो यहां से जब कोई करंट नहीं है तो ये जो वोल्टेज है ये VGG के बराबर है। सो गेट वोल्टेज जो है VGG के बराबर है, सोर्स 0 है, सो VGS इज इक्वल टू VGG। अनिल, आर यू फॉलोइंग दिस? सो बाय लॉजिक स्टूडेंट्स, यहां पे कोई करंट ना होने की वजह से, सिंस देयर इज नो करंट, यहां पे कोई करंट ना होने की वजह से ये जो VGG है वही गेट वोल्टेज है। एंड व्हाट दैट इज द गेट वोल्टेज, सो VGS इज इक्वल टू माइनस VGG। आई होप यू गॉट द लॉजिक। नाउ वंस यू गेट VGS, उससे आपको IDS मिल जाएगा, या तो पिंच ऑफ वोल्टेज देगा, JFET हो तो, MOSFET DMOS हो तो, या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज देना चाहिए, उससे आपको IDS आ जाएगा। और एक बार IDS आ गया तो VDS भी आ जाएगा, तो सर्क्यूट का हर जगह पे वोल्टेज और करंट मिल जाएगा। यू विल गेट द सर्क्यूट्स, नो देयर इज नथिंग लाइक वर्चुअल ग्राउंड। सी दैट्स अ स्टूपिड वर्ड टू यूज, वर्चुअल ग्राउंड। ग्राउंड होता है, उसमें वर्चुअल रियल क्या होता है? ग्राउंड मीन जीरो पोटेंशियल, इट्स नॉट वर्चुअल और रियल। ऑप एम्प में यूज करते हैं वर्चुअल ग्राउंड लाइक कॉन्सेप्ट, बट यू डोंट नीड इट। ग्राउंड इज ग्राउंड आफ्टर ऑल। सो ये जो 0 वोल्ट्स हैं, ग्राउंड पोटेंशियल 0 वोल्ट्स हैं, गेट वोल्टेज हैं, that itself is the gate source voltage, right? यहां तक अगर क्लियर हो तो समझो कि आप बहुत ही लो लेवल पे हो। इफ यू आर क्लियर अप टू हियर, ये गेट की स्टैंडर्ड नहीं है, बिकॉज गेट स्टैंडर्ड्स, एज आई टोल्ड यू, इज नॉट गिविंग द डेटा टू इंप्लीमेंट इट डायरेक्टली। इट इज नॉट टू इंप्लीमेंट गिविंग क्वेश्चन, गिविंग यू डेटा एंड आस्किंग यू टू कैलकुलेट। ये कोई मेमोरी वाली एग्जाम तो नहीं है ना ही गेट में इतनी मासूम से सर्क्यूट्स होते हैं। नेदर द गेट इज सो स्टूपिड इन आस्किंग यू सच वेरी सिली सर्क्यूट्स। तो गेट में अक्सर इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्क्यूट्स आते हैं ताकि आपको कैलकुलेशंस लेने में थोड़ी दिक्कत हो। दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्क्यूट। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सर्क्यूट? दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ द सर्क्यूट इज दैट VGG वोंट बी देयर। पूरी बयास करने का जो टेक्निक है वो VDD के बेसिस पे ही होगा। पूरी बायस करने का जो टेक्निक है VDD के बेसिस पे ही होगा। मतलब द सर्क्यूट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। देयर इज अ VDD, देयर इज एन RD, देयर इज एन RS, और यहां पे जो है देयर इज ओनली RG, और इस RG का भी कोई खास रोल नहीं है, इट्स ओनली फॉर AC एनालिसिस। DC में तो कोई खास एनालिसिस नहीं है उसका, कोई खास रोल नहीं है उसका। तो इस सर्क्यूट के जरिए पूरी बायसिंग होती है। सो यहां पे अगर आप Q पॉइंट कैलकुलेट करोगे, मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से डेटा निकालोगे, if you have to take out the data, what is VGS here? पिछले क्वेश्चन में तो काफी साफ था। थैंक्स दीप्तो, थैंक यू। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम फॉर EDC एंड एनालॉग लॉट मोर सेशंस। कोशिश कर रहा हूं मैं, बट EMT की डिमांड इतनी होती है ना कि कभी कभी मेरे को EMT से बाहर आना भी मुश्किल होती है। सो अदरवाइज आई एंजॉय टीचिंग एनालॉग ए लॉट। इस बार तो मैंने 2 बैचेस लिए एनालॉग में, एंड आई एम स्टार्टिंग एनालॉग ऑन 27th Jan। एनालॉग शुरू हो रही है मेरी, सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू दीप्तो। बट EMT की डिमांड ही अलग है, इट डजंट गिव मी स्कोप फॉर गोइंग टू अदर सब्जेक्ट्स। इतनी बिजी। टुडे ऑल्सो आई स्टार्टेड EMT क्रैश कोर्स, अगेन आई एम स्टार्टिंग रैंक इंप्रूवमेंट बैच शॉर्टली इन 4 days। तो EMT में इतना बिजी हो जाते हैं ना। सो या, तो हाउ डू यू गेट टू VGS हियर? एक तो VGG नहीं है यहां पे, सो पक्का ग्राउंड इज एट 0, मतलब गेट इज एट 0 वोल्ट्स। गेट तो 0 वोल्ट्स हैं क्योंकि कोई करंट तो नहीं है यहां पे। अब सोर्स की जो वोल्टेज है, सोर्स की जो वोल्टेज है वही वोल्टेज कंसिडर करना चाहिए VGS के रूप में। तो ये 0 हुआ,
सोर्स पे जो भी वोल्टेज है. सो व्हाट इज द सोर्स वोल्टेज? दैट इज IDS इंटू RS. ये है सोर्स का वोल्टेज, IDS इंटू RS. सो व्हाट इज VGS? 0 minus IDS into RS. This is called as fixed bias circuit or self bias circuit. I hope you are getting this. So the common sense is this, students. Your target in exams is to use such equations. Examiner को चाहिए कि आप ऐसे equations use करो, लेकिन कभी भी सीधा VGS नहीं देते हैं. कभी भी directly they won't give you VGS. They may give you pinch off voltage directly, they may give you threshold voltage directly, but they won't give you VGS. So once they don't give you VGS, they may give you a circuit like this. इस सर्क्यूट में भी थोड़ी बहुत ठीक है कि आप VGS निकाल सकते हो, क्योंकि VGS is equal to VGG. इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है when they give a circuit like this. ताकि VGS आ गया, if you know IDS RS. But the problem is again, how do you get IDS? Through VGS. So you will get one single equation in which there is only IDS. मतलब इस equation के जरिए अब आप ऐसा लिखेंगे कि IDS is equal to IDSS into 1 minus VGS by VP whole square. तो इस VGS को यहां पे इंप्लीमेंट करना है, so that this equation will give you IDS. सो पक्का एग्जामिनर को IDSS देना चाहिए, पिंच ऑफ वोल्टेज देना चाहिए, तभी तो निकाल सकते हो. दैट्स व्हाई MOSFET इज अ वेरी इजी टॉपिक. JFET क्वेश्चंस काफी आसान हैं. आई होप यू गेटिंग दिस टू स्टूडेंट्स. सो द कॉमन सेंस इज दिस कि यहां पे जो गेट सोर्स वोल्टेज हैं वो सोर्स वोल्टेज ही हैं. जैसे पिछले केस में गेट सोर्स वोल्टेज जो है गेट वोल्टेज हैं. This itself was your gate source voltage. Now it is a source voltage. So that from this VGS you will be getting IDS. अगर ये JFET नहीं है, अगर ये MOSFET है, enhancement MOSFET है, then you have to use the equation IDS is equal to K into VGS minus VT whole square, और threshold voltage पक्का देना चाहिए. So this is also simple. इसको self bias circuit बोलते हैं. ये भी थोड़ी ठीक है. दिस इज ऑल्सो सिंपल, स्टूडेंट्स कैन डू इट. फिर इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्क्यूट होती है इन विच द गेट वोंट बी एट जीरो. गेट भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वोल्टेज पे होती है. सो द नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द लास्ट एंड द कॉम्प्लिकेटेड सर्क्यूट, आखिरी सर्क्यूट जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्क्यूट होती है, उसमें एक R1 एक RD both connected to VDD, and then RS grounded and an R2 which is grounded. So how do you get the Q point here, or how do you get the gate voltage here? यहां पे जो VGS होती है थोड़ी सी इंटरेस्टिंगली कॉम्प्लिकेटेड है, विच इज द गेट वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज. पिछले 2-3 क्वेश्चन, पिछले 2 सर्क्यूट्स में या तो गेट वोल्टेज 0 था या तो सोर्स वोल्टेज 0 था. फर्स्ट केस में सोर्स 0 था, गेट VGG था. सेकेंड केस में गेट 0 था, VS ID into RS था. अब ऐसा नहीं है. द गेट वोल्टेज इज the voltage division rule here, क्योंकि यहां पे कोई करंट तो है नहीं है, so there is no current here. so जब यहां पे कोई करंट नहीं है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, which is R2 by R1 plus R2 into VDD, और जो VS हैं यहां पे जो वोल्टेज हैं, it is ID into RS. That's the point. So चाहे सर्क्यूट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, however complicated the circuit is, calculating the operating point or Q point should not be tough for the student. For level 1, for single stage MOSFETs,
2 स्टेज 3 स्टेज हो तो भी कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बट दिस इज द बेसिक यू शुड अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट को मॉसफेट में कंट्रोलेबिलिटी समझना है, ये इक्वेशंस इंप्लीमेंट करना है, लेकिन VGS विल नेवर बी गिवन डायरेक्टली. दे वोंट गिव यू फलाना VGS है, फलाना VT है, फलाना VP है, कैलकुलेट IDS. दे मे either give you a circuit in this form where the gate is VGG and source is 0, or they may give you in this form where the gate is 0 and source is at some finite potential, or they may give you a circuit like this where the gate is at some finite voltage, source is at some finite voltage, and this is your VGS. ताकि इस VGS से IDS निकालोगे, उस IDS से चाहो तो VDS भी निकाल सकते हो. Because what is VDS now? It is IDS into RD plus RS का वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करना है from what? From VDD. So VDD is the total voltage in the circuit. VDD is the total voltage in the circuit, in which if you want VDS, A voltage चाहिए, तो VDD minus voltage across this and voltage across this. VDD minus IDS into RD plus RS. So you can get the operating point to any extent. You can't get a more tougher question than this on DC analysis. You got the point? Anil Kumar, now you get me any complicated question in any gate exam on DC analysis, it can't be tougher than this. अब कहीं से भी कोई भी गेट एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, आई विल प्रूव दैट इट इज नॉट टफर देन दिस 3 सर्क्यूट्स. गेट को VGG मेंटेन करके सोर्स को जीरो करना, या सोर्स को हायर पोटेंशियल मेंटेन करके गेट को जीरो करना, या गेट को थोड़ी बहुत और सोर्स को उससे ज्यादा. ये 3 तरीके से VGS आती है और इस VGS के जरिए IDS कंट्रोल होती है. सिंपल. हाँ, इफ द AC एनालिसिस इज बीइंग डिस्कस्ड, अगर AC एनालिसिस की बात होती है तो शायद यू हैव टू रिमूव दिस दिस FET एंड मॉडल विथ समथिंग एल्स. ताकि AC एनालिसिस की बात करो तो यू वांट आस्क VGS, VDS, IDS की बात नहीं होती है. वहां पे इनपुट इंपोडेंस, वहां पे वोल्टेज गेन, करंट गेन, ऐसी चीजों के बारे में बात होती है. ट्रांस कंडक्टेंस की बात होती है. दैट इज व्हाट विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास. कल की क्लास में ही डिस्कस करेंगे हम लोग कि हाउ टू हैंडल AC एनालिसिस पैरामीटर्स. उसमें भी सेम ही फिक्स्ड बायस में कैसा करना है, सेल्फ बायस में कैसा करना है, वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या करना है. इसी को वोल्टेज डिवाइडर बायस बोलते हैं क्योंकि गेट को वोल्टेज डिवाइड हो रही है, सोर्स को अलग से वोल्टेज डिवाइड हो रही है. सर्क्यूट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, DC एनालिसिस करना, AC एनालिसिस करना, हाउ टू डू DC एनालिसिस, हाउ टू डू AC एनालिसिस, दैट्स इट. देयर इज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट इट. काफी बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड करते हुए डूइंग लेंदी कैलकुलेशंस आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम्स. नॉट नेसेसरी. DC analysis of a FET or MOSFET is to know the biasing circuits and implement the controllability equation. Biasing circuits को use करके controllability equation implement करना आना चाहिए. I hope I am clear with this, students. So another series of mine is going on. अभी एनलॉग पे एक और क्विक रिविजन सीरीज भी चल रही है, वो क्विज के रूप में चलती है. It's happening every day in the evening 7 o'clock. So do follow that series also. Tomorrow I will continue this MOSFET and FET with AC analysis. मतलब उसमें इस MOSFET को हटा के एक कंट्रोलेबल डिवाइस के रूप में सब्स्टिट्यूट करके AC एनालिसिस कैसा करना चाहिए देखेंगे. क्योंकि प्रैक्टिकली आज मैंने जो दिखाया उसमें कहीं भी ना इनपुट दिखाई दे रही है ना आउटपुट दिखाई दे रही है. क्योंकि एक्चुअली AC एनालिसिस जब करते हो या एम्पलीफायर की बात करते हो तो कहीं ना कहीं एक इनपुट होना चाहिए और एक आउटपुट होना चाहिए. तो वहां से इनपुट इंपोडेंस दिखना चाहिए, वहां से वोल्टेज गेन निकालना चाहिए. सो दैट्स व्हाट विल बी डूइंग इन टुमारोज क्लास. Yeah, thank you, Anil. Thank you. Thanks a lot for lot of things, Anil. You can also watch my special classes for a lot more content. Anytime, feel free to follow me. So, thank you, students. That's all for today's class. So, आज DC analysis किया हमने MOSFET का. So, this is my team, and this is the batches starting from tomorrow. Pallav Gaur sir's maths is starting.
So anytime feel free. If you got any questions, feel free to ask me now. कोई questions हो तो आप पूछ सकते हैं. Thank you Anil. Thank you. Bye students. Do like, subscribe, share for such quality content. See you students. Bye.